Good evening, ladies and gentlemen. The death of Akhil Bharatiya Akhada Parishad Mahendra Giri has sent shockwaves across the nation. The Mahant was found hanging in Bagambari Mutt in Uttar Pradesh's Prayagraj. Though the cause of death is still not clear, suicide is being suspected. Cops have recovered a 5-page suicide note in which the Mahant has named his disciple Anand Giri. Cops say Mahendra Giri expressed in the suicide note that he was upset. He also wrote what should be one of the ashram after his passing in the form of a will. Uttar Pradesh cops have detained the disciple named in the suicide note in Haridwar, Anand Giri. Listen in to what UP ADG Law and Order said just a short while ago. त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। एक स्पेशल टीम वहां भेजी जा रही है जो पूर्ण सुरक्षा के बीच उसको लाएगी तथा आगे की पूछताछ इसमें की जाएगी। इसके अतिरिक्त वहां पे फॉरेंसिक यूनिट तथा सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। Tributes are pouring in for the late seer. Prime Minister Narendra Modi has hailed Mahendra Giri for playing a big role in connecting many streams of Sant Samaj together. But the opposition is sniffing another conspiracy even in this. Aam Aadmi Party Member of Parliament Sanjay Singh has demanded a CBI probe into the death of Mahant Narendra Giri. Listen. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य नरेंद्र गिरी जी के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का समाचार मिला। सुनकर हैरान हूं, आहत हूं, दुखी हूं। आखिर ऐसा क्या हो गया? इसका सच संत समाज जानना चाहता है। इसका सच पूरा उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान जानना चाहता है और इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। My colleague Amir Haq joins me live from Lucknow. Amir, many people already raising their voice demanding a CBI probe into this alleged suicide. I want to ask you, what is the government of Uttar Pradesh thinking? Yogi Adityanath has given out a message. There were many statements coming in from many ministers in the Yogi cabinet, but suddenly they seem to have gone quiet. Are we looking at a possible CBI inquiry, or are they going to continue with the UP police inquiry into this untimely death? Well, Navika, it is too early to predict whether the state government will actually go ahead and institute a CBI inquiry. Although we do know that from certain quarters there has been this demand of an independent investigating agency probing the entire matter, because in the past as well there has been news of differences of opinion between Narendra Giri and his disciple Anand Giri. In fact, it was just in May, just about 3 months back, that things had become even between the Guru and the Shishya, because there were certain people who actually came in between and ensured that there are no differences between the Guru and Shishya. But there definitely is evidence, especially the suicide note, which actually points towards some kind of conspiracy theory, some kind of a foul play, which is why there is resonance as well, which is found in the reactions that we got from Sant Samaj, whether from Prayagraj or from Ayodhya, about instituting an independent inquiry, or for that matter a CBI inquiry into the death of Mahant Narendra Giri. But then to come to a conclusion, it is perhaps too soon, which is why we see closed-door discussions in the Park corridor here in Uttar Pradesh. And also, the police is clearly saying that we'll first have to go through the forensics reports. Of course, the handwriting of Mahant Narendra Giri will have to be analyzed to first check
whether the suicide note that was found out was actually written by him. What was the role of Let me interrupt you, Anand Giri? Amirat, right at that point, because we are being told that Anand Giri, the man who was a disciple of Mahant, has been taken into custody in Haridwar. But just before being taken into custody, this is what he told the reporters in Haridwar. Listen in. बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे। सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूं, उन्होंने जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है। And joining me this evening is Anila Singh, spokesperson of the BJP, Rahul Ishwar, activist. Also with us this evening is Acharya Shailesh Tiwari, Dharmguru, Acharya Pramod Krishnam. But my first question goes to Anurag Bhadoria, spokesperson of the Samajwadi Party. Suicide note पाया गया है अनुराग भदौरिया जी, लेकिन अभी से लोगों का एक तांता सा लग गया है जो डिमांड कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी। आनंद गिरी जी का भी स्टेटमेंट आपने सुना। आप क्या समझते हैं इस इशू पर? सुसाइड नोट मिलने के बावजूद क्यों है मांग एक सीबीआई जांच की? मुझे लगता है कि सर बहुत जल्दी अभी ये कहना, क्योंकि पुलिस अभी इंक्वायरी कर रही है। घटना आज की है, धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी। अभी और लोग भी हो सकता है, अगर ऐसी बात होगी तो चीज लोगों को पता चलेगा। मुझे लगता है अभी पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए और जो तथ्य होंगे वो सामने आएंगे, पता चलेगा उनका सुसाइड नोट के बारे में। उनकी अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसी आती है, क्या आता है, क्योंकि बहुत कुछ आना बाकी है। तो मुझे लगता है कि अभी से कुछ भी कहना गलत होगा जब तक कि सारी चीजें सामने ना आ जाए। पुलिस अपनी पूरी इंक्वायरी न कर ले, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और उन्होंने किस वजह से जी हमारे तो साथ बने रहिए। हमारे साथ साध्वी निरंजन ज्योति जी जुड़ रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आनंद गिरी को हिरासत में लिया गया है हरिद्वार में और उन्होंने कहा गया है कि उनका जो नाम लिखा गया है सुसाइड नोट में वो लेख पहचानते हैं महंत जी का, और ये उनकी लेख से नहीं है मिलता हुआ पत्र। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक साजिश है, कुछ लोग ब्लैकमेल कर रहे थे, उनसे पैसे, मंदिर और मठ का पैसा ले रहे थे और उन्होंने कई लोगों के नाम भी लिए हैं। निरंजन ज्योति जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जब इस तरह के चार्ज लगाए जा रहे हैं इस वक्त, इस जांच की आप चाहेंगे कि सीबीआई से जांच हो या उत्तर प्रदेश सरकार जो जांच कर रही है वही सही है? देखिए, जांच की रही बात तो जिस एजेंसी से जांच की जरूरत होगी सरकार करवाएगी और ये दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन ये बहुत दुखद है आज जो हुआ है। मैं विश्वास नहीं हो रहा कि आज हमारे बीच में पूज्य नरेंद्र गिरी जी नहीं है, क्योंकि उनका नेचर नहीं था, उनके स्वभाव से नहीं लग रहा था कि ऐसा कर सकते हैं। मैं तो बहुत नजदीक से जानती थी, मिलती भी थी, साल 6 महीने में हमेशा कहीं ना कहीं मिलना जुलना होता रहता था। और अभी मैं दशहरा को हरिद्वार में प्रयागराज में मुझे बुलाया भी था और बोले दीदी अगले कुंभ के लिए आपके द्वारा आरती पूजन करवाना है, अगले कुंभ में हम लोग बैठ के तैयारी करेंगे। मैं तो आज एक अंदर से विचलित भी हूँ, जिस तरह से खबरें आ रही हैं। एक आध्यात्मिक पुरुष, सजग प्रहरी कभी आत्महत्या नहीं कर सकता, क्योंकि संत अपने को मान अपमान से ऊपर मानता है। गीता पढ़ते हैं, माना अपमान है तुल्य, मान और अपमान समान होता है। मैं नहीं मानती हूँ कि ऐसा कुछ हुआ है। जरूर इसमें कोई ना कोई साजिश है, सरकार इसकी जांच करेगी
मैं तो मानती हूँ कि मेरी व्यक्तिगत भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। हमेशा मुझे दीदी बोलते थे। निरंजनी अखाड़े में महामल्लेश्वर बनाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका और आग्रह महंत जी का ही था। मुझे बहुत स्नेह दिया और मुझे याद है कि जब मुझे अखाड़े में महामल्लेश्वर बनाया गया, मीडिया के सामने खुद बोले थे कि कोई महामल्लेश्वर बन के तैयार अखाड़े नहीं में है आकर साध्वी जी के वो आत्महत्या कर सकते थे, लेकिन इस वक्त जो खबर है वो आत्महत्या की ही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी हमारे साथ हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, इस वक्त बहुत बड़ा आघात हुआ है पूरे संत समाज को और सनातन धर्म को, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि आनंद गिरी को लिया गया हिरासत में, दूसरी तरफ उनका खुद का एक बयान आ रहा है कि उन्हें नहीं लिया गया है और वो बाहर बैठे हुए हैं। तमाम अलग अलग खबरें आ रही हैं। एडीजी की जो खबर थी हिरासत में लिया गया है, उसका खंडन करते हुए आनंद गिरी जी, मामला थोड़ा सा पेचीदा हो रहा है, आपको ऐसा लगता है? मुझे तो लग रहा है कि इसमें गहनता और जांच देखिए, मैं होनी साध्वी चाहिए। निरंजन ज्योति जी की बात से सहमत हूँ कि नरेंद्र गिरी जी महंत जी जो थे हमारे, बड़े ही एक तो सरल हृदय थे और जरा सी देर में वो किसी से नाराज अगर होते थे तो एकदम बड़बड़ा के उसको गरिया देते थे और फिर राजी हो जाते थे, क्षमा भी कर देते थे। अब इस प्रकार का व्यक्ति, और ये बात ठीक है कि साधु जो है वो तो सबको समर्पित कर देता है परमात्मा के श्री चरणों में। हम लोग हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, इसको मानने वाले लोग हैं। तो नरेंद्र गिरी जी महात्माओं में भी एक सरल हृदय महात्मा थे और बड़े उच्च कोटि के संत थे। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, ये खबर ही यकीन करने लायक नहीं है। आपसी विवाद हो, मतभेद हो, ये तो चलता रहता है, लेकिन नरेंद्र गिरी जी आत्महत्या कर लेंगे, इस बात पर मैं यकीन करने को तैयार नहीं हूँ। और ये एक सनातन धर्म के साथ साथ हमारे राष्ट्र की क्षति है, ये पूरे समाज की क्षति है। साधु समाज और संत समाज आज द्रवित है और हमें उस बात की पीड़ा है। ये बात जानते हैं हम कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उद्घोष किया है कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुता। हम जानते हैं कि मृत्यु सुनिश्चित है और आत्मा कभी मरती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पीड़ा है। एक व्यक्ति हमारे बीच से गया है, सशरीर गया है, और ये हमारे बीच में रहने वाला व्यक्ति एक बड़ा निडर निर्भीक वक्ता। और कई ऐसे मुद्दे आए नाविका जी, शिरडी के साईं बाबा पे एक विवाद चला था 2 साल पहले, जिसमें हमारे जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने साईं बाबा का विरोध कर दिया था। हम लोग साईं बाबा के पक्ष में थे, नरेंद्र गिरी जी साईं बाबा के विरोध में थे, हमारा मतभेद था, लेकिन उसके बाद फिर कहीं भेंट हुई और उसके बाद सब चीज़ें समाप्त हो गई। तो बड़ा सरल हृदय व्यक्तित्व उनका, बड़ा सरल हृदय व्यक्ति, संत हृदय नवनीत समाना, बहुत ही एकदम, मुझे तो अफसोस है, बड़ा कष्ट है। और इसीलिए मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि ये एक षड्यंत्र हो सकता है। जैसा आनंद गिरी जी ने कहा है, एक तो उनकी जो लिखावट है उसको वो पहचानते हैं, दूसरा आनंद गिरी जी ने ये कहा है कि भाई वो लिखने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे। लंबा लेख, एक आदमी की आदत होती है कि साहब वो अपनी डायरी लिखता हो, पत्र लिखता हो, पत्र व्यवहार और लिखाई पढ़ाई में मुझे लगता है महंत जी ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, जवानी बातें ज़्यादा करते थे। और उन्होंने तो 4 पन्नों का 5 पेज का जो पत्र मिला है, शायद फिर आप कह रहे हैं इस पर भी प्रश्न चिन्ह होगा। आचार्य शैलेश तिवारी जी, 5 पेज का सुसाइड नोट मिला है और आचार्य कृष्णम जी कह रहे हैं कि लंबा लिखते नहीं थे वो। तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। अभी जांच बिल्कुल पूरी जांच हुई नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में ये जो एक कंट्रोवर्सी भी कहा गया था कि आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी के बीच में विवाद चल रहा था, इसका कोई असर आपको नजर आ रहा है घटनाक्रम पर? देखिए नाविका जी, जिस तरह अभी दीदी निरंजन जी ने कहा और जिस तरह प्रमोद कृष्ण जी ने कहा, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक संत जब संन्यास दीक्षा लेता है तो वह अपना पूरा अंतिम संस्कार करके तब वह संत बनता है।
एक संत का आत्महत्या करना यह अपने आप में जी, बहुत जी। ही दुखद खबर है और यह हो नहीं सकता। जिस तरह नरेंद्र गिरी जी संत थे, छने रुस्ता तुरंत गुस्सा होते थे, तुरंत ठंडा हो जाते थे और किसी भी बातों का उनके ऊपर प्रभाव नहीं होता था। लोगों को बहुत मान सम्मान और लोगों को बहुत आदर भाव से अपने पास बुलाते थे। ऐसा व्यक्ति सुसाइड नहीं कर सकता। यह अपने आप में बहुत बड़ा षड्यंत्र है और आज एक बहुत बड़ा सनातन धर्म की क्षति हुई है। भगवान उनको, उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन सीबीआई की जांच की मैं मांग करता हूं, क्योंकि सीबीआई भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी है जिसके द्वारा जांच किया जाता है। दूध का दूध और पानी का पानी आना चाहिए। क्यों अभी जो चुनाव का मौसम है, चुनाव का समय है, अभी इस तरह की जो घटना घटी है और ऐसा माना जाता है, जैसा बता रहे हैं उनके शिष्य बता रहे हैं कि मैं उनकी राइटिंग को पहचानता हूं। पहले कैसे वो बता दिए कि उनकी राइटिंग नहीं है, जब हरिद्वार में वो बैठे हैं, स्वामी जी की जो बताया जा रहा है उनकी आत्महत्या जो प्रयागराज में हुई है, तो उन्होंने अभी राइटिंग देखा नहीं और पहले से ही कैसे उन्होंने बता दिया कि अनिला जी मैं आपके पास आ रही हूं। अनिला जी, आनंद गिरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरिद्वार से। आनंद गिरी जी, इस वक्त महंत नरेंद्र गिरी जी की आत्महत्या की जो खबर आई है, कहा जा रहा है उन्होंने 5 पृष्ठ की एक चिट्ठी लिखी है जिसमें आपका नाम दिया है। आनंद गिरी जी, एक ऐसा भी वक्तव्य आया था कि आपको हिरासत में लिया गया है। सबसे पहले पूछना चाहती हूं, क्या आपको हिरासत में लिया? क्या हरिद्वार की पुलिस आपके पास आई? मैं हिरासत में नहीं हूं और मैं आपके समकक्ष हूं। मैं लगातार पुलिस के अधिकारियों के संपर्क में हूं और हमारा आपका ऑडियो म्यूट हो गया है, अगर आप माइक जरा ठीक कर लें। जी जी जी, बोलें बोलें आनंद जी। दोबारा ट्राई करें। अनिला जी, आनंद गिरी जी, एक वक्तव्य आया था उत्तर प्रदेश पुलिस का कि आनंद गिरी जी को हिरासत में लिया गया है, लेकिन हमारे साथ जुड़े थे, लाइन कट गई। हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि ये अजीब सी बात है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कहती है उन्हें हिरासत में लिया गया है, लेकिन वो बैठे इंटरव्यू दे रहे हैं? नहीं, अगर आपसे दोबारा इनका कनेक्शन जुड़ जाता है तो ये स्पष्ट करेंगे कि असलियत क्या है। परंतु देखिए, जब से ये खबर आई है इसमें कोई दो राय नहीं है, ना केवल पूरा संत समाज परंतु मुझे लगता है हिंदू धर्म को मानने वाला हर व्यक्ति आज की तिथि में बहुत सदमे में है। क्योंकि अगर मैं अपने धर्म और संस्कृति के विषय में बोलूं तो संत, जैसा कि अभी शैलेश जी ने भी बोला, महाराज जी ने भी बताया कि किस प्रकार से सब कुछ तिलांजलि करके वो संत बनते हैं और ऐसे में उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति भी मानी जाती है कि भाई हर चीज का आप सामना कर सकते हैं। तो अब ऐसा क्या हुआ? अब ये तो जांच का विषय है कि आत्महत्या है या हत्या है, कौन लोग इसमें सामने आते। मैंने सुना है 3 लोगों का नाम लिखा गया है उस सुसाइडल नोट में, परंतु कुछ भी टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी रहेगी जब तक कि पोस्टमार्टम ना हो जाए, पुलिस अपनी जो इनिशियल जांच है वो करके प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर दे। परंतु जैसा कि आप बता रही हैं, मेरी जानकारी में भी यही था कि भाई इनको हिरासत में लिया गया है, परंतु ये कह रहे हैं कि मैं हिरासत में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मुझे भी यही पता था कि शायद इनको हिरासत में लिया गया है उत्तराखंड में, तो ये तो शायद आपसे बात हो जाए तो बेहतर बता पाएंगे। पर मैं ये जानती हूँ कि क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो स्वयं योगी हैं, स्वयं एक संत हैं, तो इसकी जांच तो पूरी पक्की तरीके से होगी, अच्छी तरीके से होगी कि कारण क्या रहा है। क्योंकि हम इतना ज्यादा किसी व्यक्ति को अगर हम देख रहे हो, अचानक पता चलता है कि भाई उसने आत्महत्या कर ली है, तो सदमे में सभी आ जाते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म को मानने वाले हों या ना मानने वाले हों।
क्योंकि संत तो सबको बराबर देखता है ना। संत के लिए कोई जाति धर्म नहीं होता है, कोई ऊपर नीचे कुछ भी ईश्वर नहीं जी, होता है। हमें बताया जा रहा है कि जहां आनंद गिरी जी हमारे साथ जुड़े थे वहां अब शायद पुलिस आई है और उन्होंने कैमरा बंद करवाया, तो ये कनेक्शन की गलती नहीं थी, ये शायद पुलिस अब पहुंची है। हिरासत की खबर पहले आई लेकिन हिरासत में अभी लिया नहीं था, पुलिस ने कैमरा बंद करवाया है। राहुल ईश्वर जी, I want to ask you, this is something that is taken Uttar Pradesh circles completely by storm. Many people are raising questions about the... Well, आनंद गिरी जी हमारे साथ दोबारा जुड़ रहे हैं। आनंद गिरी जी, मैं पूछना चाह रही हूं आपसे, अगर आप हिरासत में नहीं है तो आप कह रहे हैं आपने संपर्क साधा हुआ है अधिकारियों से, आपको किसी अधिकारी ने कोई सवाल पूछा अब तक? जी आनंद गिरी जी, आप कह रहे हैं आप वहां अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं, आपसे कोई सवाल पूछा गया अधिकारियों द्वारा? आनंद गिरी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही बताएं। आपको अधिकारियों ने कोई सवाल पूछा है हरिद्वार में? नहीं, अभी कोई सवाल किसी प्रकार का कोई सवाल से नहीं हुआ है। मैंने स्वयं अधिकारियों से फोन करके बात की है, मैंने कहा कि हर प्रकार की जांच में तैयार हूँ। ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है। मेरे जो बात है इतने सशक्त आत्महत्या कभी करी नहीं सकती, बहुत मजबूत व्यक्ति, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आत्महत्या कभी नहीं कर सकते। उनकी हत्या हुई है और बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व है। मैं प्रदेश सरकार से, योगी सरकार से हाथ जोड़ के आपके दूध से मांग करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो। मैं बैठा हूं पिछले 4 महीने से। आपका उनके साथ जो दोबारा समझौता हुआ था उसके बाद आपको लगा कि कुछ लोग थे जो इस बात से खुश नहीं थे, आपने कहा कि ये हत्या हुई है। आप कैसे कह सकते हैं कि हत्या हुई है? आपको किसी पर शक है? मुझे बहुत लोगों पर शक है। उन लोगों पर शक है जो उस मठ से पैसा लगातार लाभ ले रहे थे। मुझे शक है उन लोगों से जिनको लग रहा था कि कहीं न कहीं उनकी संपत्ति वापस मठ में शामिल हो सकती है, इसलिए उनकी हत्या हुई है। वो आत्महत्या नहीं कर सकते। और मई के बाद में उनसे मैंने कोई बात नहीं की है, मेरे पास कोई संपर्क नहीं था। ये सूचना मिलती कि हरिद्वार आ रहे हैं लेकिन आए नहीं। उसके बाद कभी हरिद्वार नहीं आए। मैंने कई बार उनको बुलाया, वो हरिद्वार नहीं आए। लेकिन अचानक ये खबर आना मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरे गुरुजी आत्महत्या संभव ही नहीं है। किसी सूरत में मान नहीं सकता कि वो आत्महत्या करेंगे। वो आत्महत्या कभी नहीं कर सकते। जांच का विषय है, षड्यंत्र करके उनको माना गया और मुझे फंसाया जा रहा है। तो आपको किसके ऊपर शक है? कोई नाम आपके जहन में जिनके ऊपर शक है आपको? इस वक्त हम पूछना चाह रहे हैं आनंद जी किस पर शक है आपको, अगर आप बता सकें हमारे दर्शकों को। बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे लोगों पर शक है, नाम बता दें अगर आपको किसी पर शक है। मेरा रजत में कोई विवाद नहीं था और मटका में बहुत पुराना शिष्य हूं, मैं अकेला व्यक्ति हूं। इस वक्त आनंद गिरी जी दोबारा कह रहे हैं राहुल ईश्वर जी कि उन्हें किसी ने गिरफ्तार नहीं किया और ये कम से कम आत्महत्या नहीं है। Do you think this needs a very deep investigation? Navika ji, yes, a deep investigation is needed. As we know, our sadhus are selfless people, or these people have transcended their self. You know, I was privileged to be invited when the Shankaracharya versus Sai debate was happening, you know, from South, and I was one of the very few participants from there. I met a lot of people who were close to him. You know, first of all, pranam to Mahan Narendra Giri ji. I hope his soul has
that piece. But having said that, if people are having this suspicion, it is very important to have a high-level investigation. It's very important to bring out all the facts. Otherwise, people will always have doubts. And it's an irreparable loss to Sanatana Dharma, our Hindu culture. He was a person, as PM Modi ji rightly pointed out, he joined various streams. As Pramod Krishnan ji was saying, हमारे घर में कई सारे के streams है. There are many streams and branches. But Mahant Narendra Giri ji was such a person that he was balancing, blending and bringing a consensus to various streams and was a selfless person. It is very doubtful to believe that a person of his stature, a person of his transcendence could commit something like suicide. So definitely a CBI inquiry or a higher level inquiry should be needed. Either a court-monitored probe should be needed. Otherwise, the doubts will always linger and it will create wounds in the minds of all Hindu believers and all Sanatana Dharmic followers. Absolutely. At this point, that's where I'd like to end this particular news that's coming in from Uttar Pradesh. Many questions, answers, something that we are still looking for, investigation still at the initial stages. Was Mahant Narendra Giri murdered or was it a suicide? More questions than answer. We'll keep following this story. Stay tuned to Times Now for all the news and updates on this unfolding investigation. Thank you very much to my panelists for joining me on the News Hour.